Paper 5, Analysis and Evaluation, June 2018, Variant 52. Water boils when the pressure of its vapor above the liquid surface is equal to the atmospheric pressure. When substances are dissolved in water, the vapor pressure of the water is reduced and the boiling point is increased. The increase in boiling point is known as the boiling point elevation, delta T, which is the difference between the boiling point of a solution and the boiling point of pure water. Delta T is usually small, often less than 1 degree Celsius. When glucose is dissolved in 1 kg of water, the relationship between delta T and the number of moles of glucose dissolved is as shown. Delta T is equal to Kb into Z. Kb is the boiling point constant of pure water. Z is the number of moles of glucose upon mass of water in kg in mole per kg. Use the information above to explain why lowering the vapor pressure of a liquid increases the temperature at which it boils. It increases because heat is needed to increase the vapor pressure, and more energy is required for the water to boil and reach the atmospheric pressure. तो इसके लिए लिखेंगे more energy या heat is needed to increase the vapor pressure in order to bring it equal to the atmospheric pressure. A student carries out an experiment to determine the boiling point constant Kb for water. The student uses anhydrous glucose C6H12O6 as the solute because it is non-volatile and very soluble in water. The experimental setup the student uses is shown. तो ये experimental setup है. Digital meter will measure the temperature. Digital probe thermometer will actually be placed inside the solution. Heat will be provided. 75 grams of distilled water is put. 2 neck round bottom flask is there. One for the vapor that goes up, and a reflux condenser is there to condense it so that the vapor does not escape. And anti-bumping granules are there to, I think, make the molecules, more easily colliding with each other so that the dissolving and the spread of heat is uniform. Show using a labeled arrow where the cooling water enters the reflux condenser. नीचे से एंटर करेगा रिफ्लक्स करना क्योंकि इसको ठंडा करना है ऊपर से, तो नीचे से ऊपर उसको भरेंगे ताकि उसके अंदर भरा हुआ रहे, और जब ऊपर से एक्सेस हो जाएगा तब ऊपर से वो पानी बाहर गिरना शुरू होगा. लेट्स पुट द एरो इन द डायग्राम. यहाँ पे हम एंटर करेंगे ये कूलिंग वाटर. इस तरीके से पूरे रिफ्लेक्स कंडेंसर के अंदर ठंडा पानी भरा रहेगा और ऐसे ऐसे ऊपर से जब आप फिल कर दोगे तो बाहर गिरते भी रहेगा ताकि पानी अंदर कंटेनर के ठंडा रहे और गैस की हीट की वजह से पानी गर्म ना हो. A digital probe thermometer is used as shown in the diagram. Explain why a normal lab glass thermometer would not be suitable. Now the statement at the beginning of the question said that the boiling point elevation is approximately less than 1 degree Celsius. तो एक लैब थर्मोमीटर जो है वो उसको एक्यूरेटली मेजर नहीं करेगा. तो यू यूज अ डिजिटल प्रोब थर्मोमीटर फॉर ग्रेटर एक्यूरेसी. और इसकी रीजन यहाँ लिखे हैं, एक्सप्लेन बोला है ना तो ये लिखते हैं डिजिटल प्रोब thermometer is used for greater accuracy since the elevation in temperature
is less than 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस वजह से जो है आपके पास जो है ऐसा थर्मोमीटर होना चाहिए जो कि डेसिमल्स में एक्यूरेटली टेम्परेचर को मेजर कर सके। The student follows this procedure. Transfer 75 grams of distilled water to the round bottom flask. Add anti-pumping granules to the distilled water to prevent violent uneven boiling. जैसे मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म स्प्रेड ऑफ हीट, यूनिफॉर्म बॉइलिंग होगी। Heat the distilled water until it boils and record the highest stable temperature. Stop heating and allow the distilled water to cool to room temperature. Remove the reflux condenser and add about 1 gram of anhydrous glucose. Measure accurately. Replace the reflux condenser and heat the solution until it boils, noting the highest stable temperature. Repeat steps 4 to 6 each time, adding approximately 1 gram more of anhydrous glucose accurately weighed until sufficient readings are taken. In step 4, the heating is stopped and the distilled water allowed to cool from its boiling point before removing the reflux condenser. Apart from safety reasons, explain why this is essential. It is essential to prevent loss of the water vapor. अगर आपका कूल टू रूम टेम्परेचर ना हो तो उसके अंदर वेपर होगा और वेपर जो है जब आप रिफ्लक्स कंडेंसर निकालोगे तो वो उसके अंदर से आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में से लीक कर जाएगा। और मास ऑफ वाटर शुड रिमेन कांस्टेंट इन ईच रिपीट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो अगर वो वेपर की तरह लॉस हो गया तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इसका क्या जवाब लिखेंगे? इसके लिए हम लोग लिखेंगे टू एंश्योर दैट द मास ऑफ वाटर present remains constant and none of it is lost as water vapor when the reflux condenser is disconnected। फिर मास ऑफ वाटर चेंज हो जाएगा और हमारा एक्सपेरिमेंट बेकार हो जाएगा। At 101 kilopascal या 1 atmosphere, distilled water is known to boil at 100 degrees Celsius. Suggest why the boiling point of distilled water in this experiment was found to be 99.48 degrees Celsius. Assume that the digital probe thermometer was reading accurately. अच्छा, आपको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कम है इसका मतलब प्रेशर जो है मौजूद था लैब में वो कम है। अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता तो 100 डिग्री सेल्सियस आपका बॉइलिंग पॉइंट आना चाहिए था। यहाँ पे प्रेशर कम हो गया है इस वजह से टेम्परेचर फॉर बॉइलिंग भी कम हो गया है। तो क्या लिखेंगे? द प्रेशर इन द लैब was lesser than 1 atmospheres या लिख सकते हैं lesser than the standard pressure। इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 99.48 आया in place of 100 degree Celsius। The student constructed the table shown to record the results for this experiment. Complete column C and D to 3 second figures and column E to 2 decimal places। The MR of glucose is 180 और Z है moles of glucose upon mass of water in kg। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कॉलम्स हैं डी, ठीक है, अब इसमें से हमें निकालेंगे सी डी और ई निकालना है। तो कॉलम सी सबसे पहले अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर पर मोल। तो बेसिकली आपको पर मोल निकालना है तो मास ऑफ ग्लूकोज यानी कॉलम ए की वैल्यू को डिवाइडेड बाय आप 180 करोगे तो आपके पास मोल्स ऑफ ग्लूकोज आ जाएंगे। डी में आप जो कॉलम सी की वैल्यू है मोल्स, क्योंकि मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन मास ऑफ वाटर इन केजी है, तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है
आपके कॉलम सी में है, और जो मास ऑफ वाटर यूज किया गया था वो 75 ग्राम यूज किया गया था। 75 ग्राम से 0.075 kg, तो कॉलम सी की वैल्यू अपॉन 0.075 कर देंगे। और ई जो है वो डेल्टा टी है, डेल्टा टी इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इन्होंने बोला है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर वाज 99.48, तो आपकी कॉलम बी की वैल्यू में से जब आप 99.48 माइनस कर दोगे तो आपको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मिल जाएगा। So let's use these formula to complete the table. 3 सेकंड फिगर्स तक रिकॉर्ड करनी है वैल्यूज कॉलम सी और डी की, और 2 डेसिमल प्लेसेस पर रिकॉर्ड करनी है कॉलम ई की। ये हमारा टेबल है। इसमें इन्होंने जब जीरो मास ऑफ ग्लूकोज ऐड किया, यानी प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी शो किया हुआ है 99.48, और हमारा फर्स्ट रो जो है वो भी इन्होंने हमें सॉल्व करके बताया हुआ है कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए हैं। नाउ लेट्स यूज दिस फॉर्मूले टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द टेबल। तो ये हमने अपना टेबल कंप्लीट कर लिया है विद द वैल्यूज इन कॉलम सी एंड डी रिकॉर्डेड टू 3 सेकंड फिगर्स एंड द वैल्यूज इन कॉलम ई रिकॉर्डेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस। Plot a graph on the grid to show the relationship between delta T and the amount of glucose in 1 kg of water Z. Use a cross to plot each data point. Draw a line of best fit. तो ये तो ये ग्रिड है जो ग्रिड हमें जो हमें दिया गया दिया है, गया है, और इस ग्रिड पे हमें जो है अपने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं यूजिंग एक्स टू प्लॉट द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसका जो हमारा ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन बनेगा। इस तरह से हमारा ग्राफ आ जाएगा, और इस पे जो एनोमलस पॉइंट है वो समवेयर बिलो द लाइन आ रहा होगा, एनोमलस पॉइंट। और एनोमलस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपका डेल्टा टी की, उसकी वैल्यू होगी वाई वर्सेस एक्स की ना, तो वाई की वैल्यू होगी 0.24 यानी डेल्टा टी, और एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी 0.519। ये आपका एनोमलस पॉइंट है। इसको आप लेबल करके एनोमलस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है पासिंग टू द ओरिजिन विद एन एनोमलस पॉइंट एट कोऑर्डिनेट 0.24 एंड 0.519। सर्कल द मोस्ट एनोमलस पॉइंट ऑन योर ग्राफ कर चुके हैं। use the graph and the equation to determine the boiling point constant kb for water. Give this value to 3 second figures and state the units. State the coordinates of both points you use in your calculation. So basically आपका जो y axis वैल्यू है वो है डेल्टा टी, और आपकी x एक्सिस वैल्यू जो है वो है z। ठीक है, तो के बी जो है वो m हो गया, यानी ग्रेडियंट हो गया। तो आप कंस्ट्रक्शन लाइन बना के ग्रेडियंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लोगे एंड यू विल कैलकुलेट द ग्रेडियंट। आपकी जो ग्रेडियंट की वैल्यू इट शुड कम समवेयर क्लोज टू 0.510, और के बी के जो वैल्यू होगी यूनिट्स होंगे वो y अपॉन एक्स के यूनिट्स होंगे। y अपॉन एक्स जो है वो बनेगा y इज डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस पे है मोल पर केजी। तो जब इसको न्यूमरेटर में लेंगे ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस पर मोल इंटू केजी। तो ये हो गए इसके यूनिट्स। अगर केजी, अगर हम न्यूमरेटर में पॉजिटिव वैल्यूज को पहले रख लें तो हम यूनिट्स लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। Delta T actually depends on the number of dissolved particles in solution. The experiment was repeated using solid from a bottle that was labeled glucose CC1206 but actually contained sucrose C12H22O11. Sucrose is non-volatile and very soluble in water. ठीक है, what would be the effect of this on the value the student obtained for KB, यानी ग्रेडियंट पे क्या असर होगा इसका। आपके पास जो है एक ऐसा है मटेरियल है जो कि सोल्यूबल नहीं है और सोल्यूबल है और वोलेटाइल नहीं है। ठीक है ना, तो केबी पे क्या वैल्यू होगा, ग्रेडियंट जो है वो लेस टी पर आएगा,
ठीक है। तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रिलेटिवली कम होगा। जब एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो y की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। जब y की वैल्यू कम होगी तो ग्रेडियंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होगी। ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे? के बी वुड बी लोअर देन दैट ऑफ ग्लूकोज as fewer molecules या moles, fewer moles of sucrose are turned to vapor, which results in a lower value of delta T, जो कि boiling point elevation है, than expected। ये आपका आंसर होगा। केबी की वैल्यू होगी, ग्राफ लेस स्टीप होगा। अगर ओरिजिनल ग्राफ ये है तो नया जो ग्राफ होगा वो इससे थोड़ा लेस स्टीप बनेगा। The student used distilled water to dissolve the glucose. Suggest why the student did not use tap water. अच्छा, टैप वाटर जो है उसके अंदर जो है वो डिजॉल्व आयंस होते हैं, तो वो खुद जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के साथ, बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन के साथ इंटरफियर करेंगे। तो यही लिखना है, टैप वाटर कंटेन्स dissolved ions which would interfere with the boiling point। चाहो तो ब्रैकेट में एलिवेशन भी लिख दो, boiling point elevation। The student repeated this experiment using sodium chloride as the solute। The student found their calculated value of Kb was twice the calculated value obtained from glucose। Suggest a reason for this। क्या यूज किया इसने? सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि NaCl सॉलिड को जब आप पानी में डालते हो तो इट डिजॉल्व्स एंड प्रोड्यूसेस Na पॉजिटिव एक्वस आयंस एंड Cl नेगेटिव एक्वस आयंस। तो बेसिकली जब आप NaCl डालोगे तो नंबर ऑफ डिजॉल्व्ड आयंस जो है वो ट्वाइस हो जाएंगे देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट। ग्लूकोज में ये केस नहीं है। ग्लूकोज में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज रिमेन्स एज 1 मोल ऑफ एक्वस ग्लूकोज। उसमें जो है वो आयन स्प्लिट नहीं होते। तो NaCl के डालने से नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द solution is twice than the number of molecules present in a solution of glucose। तो इसका आंसर लिखेंगे, there are twice the number of dissolved particles in a solution of NaCl aqueous as compared to C6H12O6 aqueous।